पहले दिमाग था ऊपर तो हो रहा है। कॉलेज और अच्छा होने के लिए क्या क्या सजेशंस दे दो, दे के जाओ। सो वी हैव कम ऑन इनविटेशन। आपका कॉलेज वाले ने हमको बुलाया है। सर आए हैं असम से, देवशीष भट्टाचार्य, बराबर है सर? स्पेलिंग योर नेम करेंगे। All the way from Assam. He started 6:30 yesterday morning. Just came only for meeting you and see that the college is going to progress in the future years to come. Sir, Mr. Reddy, he has come all the way from Tirupati to Bangalore. The traveling is going to be really, really hectic. He has taken that trouble to come to your college. And myself, Shobna Vasudevan, I am coming from Mumbai. And all the three of us are interested. This college has to go, reach greater heights. Now it is only 12-year-old, right? 2012 it has started. And you are all the students of the batch. And we are here to hear from you how this college must reach in 2036, 2046, and when the college is going to celebrate the Golden Jubilee. You all can speak in English or Hindi. If you want to speak in Telugu, sir can understand. Kannada, Assamese, sir can understand. And Tamil, I can understand. Okay? All languages you are free. And wish you all the best. Thank you for coming over here. Thank you. I will give you a clue. 3 questions. Why did you choose this particular? What are the things that you need right now, which may not be given immediately, but you think the college needs after 5 years? Even that you can say, because the college, so that आपका juniors जो होते हैं उसको भी फायदा मिलेगा, जो अभी नहीं है वो भी आप बोल सकते हैं, so that we can give it as a suggestion. It is not a criticism, but you should understand. अभी मुंह देके बैठने का नहीं है, फटाफट अपने को आंसर चाहिए. Why we chose this college? Boys and girls, one boy and one girl. Why? कोई बच्चे वॉलंटियर कर देना बेटा, सो दैट माइक घुमाएंगे. क्योंकि इस कॉलेज में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है जो मोटिवेट करती है और बहुत सी चीज़ें हम इस कॉलेज से सीखते भी हैं. यहाँ के टीचर्स हमें एजुकेशन के साथ साथ उनका लाइफ का एक्सपीरियंस देते हैं, जिसकी लाइफ के एक्सपीरियंस से हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और जो चीज़ें होनी चाहिए और जो अच्छी चीज़ें करने की कोशिश पूरी करते हैं. कॉलेज हमें बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, स्पोर्ट्स में भी है और कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी है, और कैसे हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें इसके बारे में भी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. और कहीं आप किसी फील्ड में अगर हम लैग कर रहे हो तो उस फील्ड के भी हमें पूरा नॉलेज देते हैं और हमें अच्छी तरह से गाइड करते हैं. इसलिए हमने इस कॉलेज को फर्स्ट चॉइस रखी और हमें फर्स्ट चॉइस मिली. मैंने जो कॉलेज चुना है वो मतलब एक तो कल्चरल एक्टिविटीज़ के रूप में, यहाँ की फैकल्टी के रूप में चुना है और रेपुटेशन के तौर पर भी चुना है. और जैसे आसपास एक ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी, जैसे देवनारायण भगवान जी की जन्मस्थली है तो उस हिसाब से कल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती है यहाँ पे. और पोस्ट एंड स्कॉलरशिप्स एंड यहाँ पे तो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं. जैसे अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं टाइम पे, जैसे अभी थोड़े नवरात्रि के लिए अलग अलग चलते रहते हैं. इस हिसाब से मैंने इसको चुना है और मुझे अच्छा लग रहा है. मेरी भी फर्स्ट चॉइस थी और मुझे फर्स्ट में मिल गया है. चाहिए नहीं चाहिए? अगर who will say that? Which PG चाहिए? Then you will go for PG. ये पास वाली बिल्डिंग है सर. Multipurpose All. hall का पास में. यस सर, मल्टीपर्पज हॉल के पास में. Is there anybody who is the boarder in the hostel? Anybody here? Staying in the hostel? Anybody is staying in the hostel? Raise your hand, please. Sanitation? जॉल वगैरह, टॉयलेट सब ठीक है? कितना पैसा देता है? How much? What amount you require to give per month? 1250. 1250 per month. यूनियन है? Student council. स्टूडेंट काउंसिल है क्या कॉलेज में? No sir. नहीं है? You want or not? Yes. That's my not necessary. Student council, I think now most of the state government are not allowing. So you know, the college people cannot do anything. I don't know what is the position in Rajasthan. I think the third. Mumbai also, sir.
We have a student council, but it doesn't get that operational informal council. In both aspects. आपका पीने का पानी यहाँ है कॉलेज में? Yes, sir. और टाइम पे मिलता है? खुला रहा है? लाइब्रेरी से किताब मिलता है? कितना किताब? एक साथ में कितना किताब घर लेके जा सकता है? मिलता नहीं? कितना How many books you can borrow? हेल्थ सेंटर कोई बीमार हो जाए कॉलेज में कहाँ जाता है? बोलो क्या करते हैं? शायद अभी मेरा हेडेक हो गया। मेडिसिन रिक्वायर्ड हो जाती है लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब इंजरी है और सीरियस है तो हमें और टीचर्स लेके जाते हैं हॉस्पिटल। This language, are you willing to join in certificate course or diploma course? It is essential for getting employment abroad as well as other states. Additional courses. Do you have add-on courses? Add-on courses to get better. Please, there are 7, 8. आपको कुछ कोर्सेज चाहिए ना, उसके लिए बुक्स चाहिए, कोर्स चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। और जो अदर कंट्रीज होती है, मेगा कंट्रीज होती है, वहाँ पर मेगा सिटीज़ होती है, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो वो चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम। For school teacher, how many of you like to be teacher? Now you like to be IAS officer or teacher? Both. Then what about the rest of the people? एजुकेशन फील्ड में अदर भाई क्यों बनने वाले हैं? है ना? सर अभी कोचिंग सेंटर और उनका ज़्यादा हो रहा है। So you are one way correct. Nowadays it is said that education has become once it was not there. PW और वो है ना LL, PW, आकाश। Yes, you are many and तो सर उस टाइम में सर डेली यूज़ के लिए सिर्फ हमारी जो एजुकेशन वो चलो वही चल रहा है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ नया चीज़ लाए, जैसे सर जापान में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, सिर्फ बुक के अंदर ही नहीं, बुक के बाहर क्या होता है वो सारी चीज़ें। गर्ल्स कॉमन रूम में आए, बॉयज कॉमन रूम में खेलने के लिए कुछ है क्या? बॉयज कॉमन रूम में प्लान करेंगे। नॉर्मली यूनिवर्सिटी का होता है, वैसे तो कॉलेज में स्काउटिंग चलती है लेकिन यू विल गेट सम 10 marks or something like that. You see, you have because now you are studying B.Ed program. After completing B.Ed program, you require M.Ed program here. That is the basic thing for entering into research programs or entering into the teacher job in abroad and even other parts of India. Other thing, you need better communication skills, English language particularly. You go for Google, just type it. What are the scholarships available for doing M.Ed program in Asian countries and South Asian countries or in African countries or in European countries, particularly European countries. What skills we require for entering into the teaching profession there. Try to equip when you are studying here itself. When you go to your home, you can't do anything. Mother will say, hey, child, come, just clean this vessel. That's normally it is happening in our homes. Boy also, they come, we'll go to the field, we'll do this farming work. You don't have any opportunity to talk, opportunity to interact in foreign language, opportunity to equip yourself. Because you are staying 4 years here, 4 years is not a small period, it's a very, very big period. One can do wonders if you have the will. One can do wonders. Within these 4 years, if you do hard work, if you equip yourself in different angle, I am sure that everybody will get the job. You have to ask for more job melas in the college. Every year, the college should organize some job melas, inviting
teachers from managements from government as well as from private institutions, from some other schools, public institutions, public schools, so that at least some of you can get employment. So you have to think in different way. You should not think that, oh, after completing this, if I get the government teacher, that's enough for me, like that. No, that is not your aim. Always your aim should be high. If your aim is high, at least you will reach to this level. Then nobody will stop your growth. You yourself can visualize or see varied opportunities in and around you. This is what is required. When the teacher is not telling something, you have to ask, Madam, I need this particular thing. Can you please tell me? Demanding the things. Because unless if you are hungry, unless you ask your mother, please give me some food, I am hungry, mother won't give. Oh, my child is not hungry, it's all right. Like that. Same thing even in the college also. Think practically. Nothing wrong in it. Everything depends on how we think and take the things in positive way. That is what we call it as constructivism in Paulo Freire philosophy. You might have studied in B.Ed or you may study in the years to come in B.Ed. Constructivism. That constructivistic thinking, constructivistic way of doing things, constructivistic way of supporting the community and supporting your friends and fellow beings is more important for a human being. That is what is education. Nothing is there education. It is just modification of human behavior in one word. If somebody asks you, what is education? You can say it is just nothing but modification of human behavior. That human behavior can be in the form, modification can be in the form of providing adequate knowledge, adequate skills, equipping positive attitudes and competency building within us. That's how you will get employment in the market. Very simple concept. Unless you demand, nothing will come to you, I am telling you. This is what I want to say. I think in every face I am seeing some glittering. If I have this many students in my hand, within 4 years I can do wonders. Everybody is good, it seems. It's something special in your faces. Only thing is, you should come forward to ask or demand or pursue. Instead of demand, I can say, pursue what you need. From the college, when you are here, नमस्कार सर। सर आपने जो बताया जैसे कि हमारे कॉलेज में पीएचडी के लिए भी होना चाहिए, एमएड के लिए भी होना चाहिए और पीजी के लिए भी होना चाहिए। हम भी चाहते हैं ये सारी फैकल्टीज, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ महाविद्यालय में होनी चाहिए। और मैं एक और कहना चाहूँगी, जैसे हमारे कॉलेज के बहुत से होनहार बालक और बालिकाएँ हैं जो खेल में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसका कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है, कहीं नहीं कर पाते हैं, कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं। वैसे हमारे बहुत से ऐसे भी हैं जो बाहर बढ़िया बना के भी आए, मेडल भी लेके आए हैं, तो उनको भी ऐसा मौका मिलना चाहिए कि वो भी बाहर कुछ अच्छा नाम बनाए अपने हमारे आसिफ कस्बे का, ताकि वो भी जैसे देवनाथ भगवान जैसी जन्मभूमि है हमारे यहाँ पर। और शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए कि जैसे दूसरे महाविद्यालय से बढ़कर हमारा महाविद्यालय दिखे। हमारे इधर 2-3 और छोटे बड़े हैं महाविद्यालय, पर वैसी इस कॉलेज जैसी व्यवस्था बाहर नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको और बेहतरीन बनाया जाए। आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो शायद और बुलंदियों को छुएगा हमारा कॉलेज। धन्यवाद। The suggestion, though very few in number, I thought that you will put many more suggestions. मुझे ऐसे ही कॉन्फ्रेंस अपने कॉलेज में चाहिए ताकि हम जब मॉडर्न यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में हम किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करें तो अच्छा करें वहाँ
तक। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में जब हम जाते हैं तो हम बहुत देखो कॉन्फिडेंस होता है और बहुत सारी चीज़ें जो कम्युनिकेट इसी से नहीं कर पाते हैं। रिसर्च में जब कंट्री के बारे में थोड़ा रिसर्च करना होता है किसी टॉपिक के बारे में, तो हम पूरी तरह से ढंग से नहीं कर पाते, हमें पॉइंट्स नहीं पता होता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें। तो हम ये चाहते हैं कि इस कॉलेज में मॉडर्न यूनाइटेड नेशन जैसी कॉन्फ्रेंस हो और वहाँ पे फ्यूचर लीडर्स मिले। देखते हैं क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ये सब वगैरह देखने का ही। तो आपका तो कोई ना कोई इस कॉलेज में पढ़ता है, जो पढ़ता है तो और जाकर आपको बुलाता है क्या परेशानी आए, क्या परेशानी नहीं आए, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। आपका कॉलेज में विज्ञानों का बात चला जाएगा, फिर कहा जाएगा सामने से चला जाएगा कि दुनिया से नहीं जान पाता क्या परेशानी आए, क्या पास पॉइंट है। और आपका जो स्टूडेंट पढ़ता है कॉलेज में वो तो और जाता है, बोलता है क्या है नहीं है, हम लोग को बताएं। हम लोग नहीं बोलेगा, आपको जो बोलने को तब बोलेंगे। मेरे बेटे यहाँ पे बैठे हुए हैं BA में, और मैंने बहुत अच्छा फील किया यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है, जब से अगस्त से यहाँ पे आ रही है ज्वाइन कर लिया यहाँ पे, तो बहुत अच्छा मतलब फील कर रही है। जैसे कि ड्राइंग वगैरह करना, जैसे यहाँ पे मॉडल वगैरह भी उसने बनाए, और क्लासें भी मतलब लगभग मतलब बराबर अच्छी चल रही है। सभी सब्जेक्टों में उसके पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य है, तो तीनों सब्जेक्ट के अंदर अच्छा चल रहा है उसका, मतलब बराबर टीचर बराबर इसको कर रहे हैं, बच्चे भी मतलब खुश हैं यहाँ। फिर मेरा गांव यहाँ से ब्राह्मण की एरिया से 11-12 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ से ये जैसे यहाँ पे आते हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा चल रहा है उसका, और टीचर वगैरह सभी सब्जेक्ट में जो भी उसके ऑफर सब्जेक्ट है अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पे मतलब कल्चर के अंदर भी मतलब प्रोग्राम भी एक है उसमें, कल्चर प्रोग्राम भी तो अच्छी तैयारी चल रही है लगातार मतलब। और रही बात तो अनुशासन, अनुशासन भी यहाँ का अच्छा है, बहुत अच्छा है। अनुशासन भी बच्चे को आगे बढ़ाता है। अनुशासन अगर बच्चे में संस्कार जो भी नहीं है तो बच्चा आगे नहीं बढ़ता। तो मुझे ये भी फील हुआ कि मतलब बहुत ही मतलब यहाँ का अनुशासन मैनेजमेंट जो भी आपका स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा कर पा रहा है। और यहाँ पे जो हमारे को, मैं स्काउट गाइड से भी जुड़ी हूँ, मैं एक शारीरिक शिक्षक हूँ मिडिल स्कूल में, तो मतलब यहाँ पे स्काउट से भी मतलब जब भी हमारे को यहाँ पे जरूरत पड़ती है वो भी हमारे प्रोग्राम भी यहाँ पे करवाते हैं, और भी मतलब स्काउट वाली बच्चियाँ भी यहाँ पे मदद सेवा दे रही है। स्काउट गाइड से भी हमारे वहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा हुआ है। यहाँ का एनवायरनमेंट, और इस कॉलेज से मैं, क्योंकि मैं लाइब्रेरियन यहीं हायर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर्ड हूँ, और इनिशियली इस कॉलेज से मैं जुड़ा हुआ हूँ फ्रॉम 12-15 साल से। जब इस कॉलेज का सेटअप अवस्था थी तो हम लोगों ने काफ़ी इसको हेल्प किया था। हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो 12 स्टूडेंट्स थे उनके लिस्ट माननीय आपके प्रिंसिपल साहब हैं, मिस्टर पाटिल साहब, उनको हमने असिस्ट करवाया था। और उस समय से ही इस कॉलेज का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है, और डिसिप्लिन भी ठीक है, और मैनेजमेंट का जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ऐसे तो यहाँ के जो ओरिजिनल टीचर्स हैं वो संतुष्ट होंगे। मेरा ये सुझाव है कि ये कॉलेज अपने उत्तरोत्तर प्रगति पे है। स्काउट और गाइड की एक्टिविटीज जहाँ चल रही है, तो मेरा आपसे हम्बल निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर बच्चों को एनसीसी का भी अगर यहाँ पर एक खोल दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से, और मैं चाहूँगा कि आप निवेदन है आपसे कि आप इसको स्टाफ नोटिंग तो नहीं दें और आगे तक पहुँचाएंगे, तो जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ रही है, जो डिफेंस सर्विसेज के लिए उनको उसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफेंस से मिलता है, तो वो नेक्स्ट भविष्य के अंदर वो काफ़ी फ्रूटफुल बनेगा। तो यहाँ पर
तिरोड़ा नजदीक है 55 किलोमीटर 5 रात इंडियन जो एनसीसी यूनिट है वो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इसमें मालिका लेवल में गवर्नमेंट कॉलेज में उसका लेफ्टिनेंट कर्नल सर बैठते हैं। तो मेरा आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे और प्रशासन से कहेंगे ताकि जो अध्ययनरत जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल सकेगा। डिफेंस सर्विसेज के अंदर आज की तारीख में हर बच्चा चाहता है, हर पेरेंट्स चाहता है कि डिफेंस में टाइम तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं उनकी बदौलत है दे आर स्ट्रगलिंग फॉर अस। सीमा पर बीएसएफ वाले जो रह रहे हैं, कितनी आपने देखा होगा, अखबार में आया होगा कि रेत पर पापड़ तक सीख जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है। तो खोजी गई ज़्यादा हम हमारे यहाँ से हम चाहेंगे जैसे खोजी गई तैयार हो, और वो जब बन सकेंगे जब यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? आप ऑनरेबल सर यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आए तो इस चीज़ को आप पॉइंट आउट करें कि यहाँ पर एनसीसी का खुलना नितांत आवश्यक है। बाकी ऑल ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन प्रोग्रेस, ऑल इज राइट। थैंक यू सर। मेरी बहन यहाँ पे पढ़ती है हर्ष में, उसका एडमिशन फर्स्ट ईयर में हुआ है और वो मेरा ननिया नहीं है, मैं नानी सा के साथ। मेरे मम्मी और नानी सा लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, वो हिंदी नहीं आती है। उसका शुरू से ही डिबेट में बहुत इंटरेस्ट है, वो राजस्थान में फर्स्ट भी आई है। तो हमने सोचा था कि यहाँ पे ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं या नहीं है, बाल विभाग से रिलेटेड, भाषण से रिलेटेड, आशुभाषण से रिलेटेड। तो फिर यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे मौके ऐसे मिले बोलने के, और हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके कितना अच्छा उसको मिला मौका। एंकरिंग करती है, पोएम बोलती है, उसका कॉन्फिडेंस मेरे से बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत कम बोलती हूँ, बहुत हेजिटेट करती हूँ, लेकिन ये कॉलेज बहुत अच्छा है, उसको ये मौका दिया बोलने का, आगे बढ़ने का, और उसको कॉन्फिडेंट दिया कि भाई आगे जाके इसको लोगों में बोल सके। वो आगे जाके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती है, तो ये उसकी बहुत अच्छी बात है। कॉलेज बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, ये सारी क्लासेस टाइम पे लगती है, टीचर्स भी अच्छे हैं कि वो उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं। थैंक यू। मैं गोविंदा बोले वाइस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ यहाँ मेरी दो बच्चियाँ पढ़ चुकी है, एक BSc ही और एक BA थी। यहाँ जब ये कॉलेज खुला था बाबा के नाम से, तो सर पंडा जी ने हमारे संपर्क किया और पूरा फील्ड के अंदर हमने मिल के यहाँ जो मेरे 22 क्लास के स्टूडेंट थे उनको ट्रेनिंग कराने में हमने बहुत सहयोग दिया। और ये जो कॉलेज है एक मतलब अच्छा कॉलेज है, सबसे बड़ा यहाँ डिसिप्लिन और बिल्डिंग की जैसे कि सुविधा हैं, साथ ही जो है ये अवैध से बाहर है, शांत वातावरण, इस प्रकार का पुलिस वगैरह ड्राइविंग कर रही है और आराम से आ जाते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और यहाँ सभी तरह की एक्टिविटी यहाँ की जाती है। तो हमारे बच्चा से जुड़ी हुई है, तरह तरह का राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने गेम में भाग लिया है और वैसे स्टोरी राइटिंग का जब जुड़े हुए तो यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय लेवल तक जा रहे हैं। तो एक महाविद्यालय का नाम है और अच्छा वातावरण यहाँ पे है। और इसके अलावा साथ ही यह है यहाँ पर सुविधाएँ हैं और एक अच्छा वातावरण, अच्छा डिसिप्लिन और एक आचार्य वहाँ जी जिन्होंने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो थी अच्छी शिक्षा मिले, तो एक बहुत अच्छी और नैतिक शिक्षा मिल जाती है। तो विद्यालय में अच्छा लगा और आज सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है बच्चों की संख्या है। गुड आफ्टरनून। Why you are yet to form an alumni association, despite the fact that knowing it well, it carries some mark. Now, whatever you will say, never will find that there is no registered alumni association. No one can have. You should have registered an alumni association. I am saying that it carries some credit to them, some marks. Now that's how you will not get. It is not me or I am not supposed to give the mark. It is the neck that is to give the marks. That scope will not be there. But still, you are the alumni, you tell us another thing that we tell very frankly. You are yet to make any financial contribution for the development of the college. Why?
Not only in our, of course, in our country, alumni association, comparatively weak in general educational institution, but go to IITs, even in India, go to IIMs, we cannot think of how much contribution made by the alumni. IITs, IIMs, huge amount of money are donated by the alumni. Monies are coming for the IITians or students passing out from the IIMs are there in the foreign country, and then in foreign exchange they are donating to their parents and schools. We have the Alumni Society in that. What you look at that? The president is no, I'm a treasurer. How many members are there? Actually now only 13 members. हम जो कार्यकारिणी है ना, जो उसका टीम है, अभी तक सिर्फ उसका गठन हुआ है. रिसेंटली 15 मार्च ये 2024 को रजिस्ट्रेशन हुआ. 13 March. Yeah, we are actually registered. Might be, but we are being sent the SSR. SSR was submitted long back. Yeah. That SSR says that you are not registered, and even if you are registered on 30th March, that credit will not be given to the college because it is going beyond the assessment period. Assessment period is up to 22-23. No, actually registered. Yeah, anyway, we will write these things that now it is registered. Yes, sir. Now this is Please registered. now, listen, at least now, you activate the Alumni Association for the second cycle at least. Because you have 700 students, when they are going out, you just make every student to be the member of this Alumni Association. They need not give this much of money. They need not give money to the college. You have to give service to the college because you have studied here, you have utilized all these infrastructure facilities and other things for developing knowledge, skills and competencies. In return, this is the part of the society, this college. You have to give something. If you are employed somewhere in the textile industry, at least once in a month you can come over here and women empowerment. Is it difficult? If you are working in computer science, we can take one class on computers, how these possibilities of getting certificate courses, what are the government schemes that are available for skill development. Like that these are service activities. It is not kind, it is concrete giving money, it is service. So that your bondage will be increased between the college and you. Otherwise, what is the use for us? I have studied in this college, I went there, I am getting employed, I am taking care of myself. What returns we are giving it, what memories we have in our mind about the institution which we have studied. Think in different way. I am not blaming anybody. Similarly, sir is telling ex-servicemen. There is no NCC here. And sir can say that, sir, I will give and enlighten the students about NCC activities. Once in a month I will come and give me 1 hour time to talk to your students. Nothing wrong in it. Similarly for other women, kitchen gardening. See, lot of things one can do if you have the positive bent of mind. If we are not having that positive bent of mind and service orientation, only God is only should help us. It is not now helping others to help ourselves. I am not helping you by giving some support. I am helping myself because I will get internal satisfaction. I will gain another person's heart. And that person, when I am going outside, sir, namaste, how are you? It is a great satisfaction an individual will get. But sir, think in different terminology, in different way of looking at the things. That is divergency.
which we are supposed to develop the divergent minds in the students, not convergent minds. That is what I expected when I am asking you what the teaching strategies you are using in your classroom, teaching and learning strategies. It is not acquiring the content knowledge and passing the examination and other things. Beyond to that, lot of things are there. That lot of things that NEP is expecting now, the country is expecting now, and we are also expecting the same. We have to gear up for such things. You can say. सर, जैसे कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे यहाँ इस कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ की स्टूडेंट भी हूँ और एज ए प्रोफेसर में असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ जॉब भी कर रही हूँ। कुछ यहाँ के प्लस पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट लड़की हूँ, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन पाई। तो सर ये मेरा यहाँ आने के बाद मेरा एक प्लस पॉइंट है। और सर ने हमें एक स्लाइड समझा है, उन्होंने देखा है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। जैसे कि सर मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी हूँ, तो मैं जूलॉजी पढ़ाती हूँ, तो कुछ कमियाँ जब हमारे टाइम पे रही होंगी उन चीज़ों को मैं यहाँ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सर ने इतना विश्वास दिखाया है तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगी। और कुछ चीज़ें सर जो अगर मैं जब मैं पढ़ती थी वहाँ से 2013 का जो बेस था उससे अभी तक में, तो जो ग्राफ है कॉलेज का जो अगर हम फिजिकली देखें इसका तो भी उसमें ग्राफ अप हुआ है इसका। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है कि मैं यहाँ काम कर पा रही हूँ। और सर जो प्रिंसिपल सर है वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो वो हमसे हमेशा राय मांगते हैं कि आप अपनी एडवाइस दे सकते हो कि आपको क्या करना है। तो मैंने जैसे कि एक होता है एज ए एलुमनी, अगर मैं बात करूँ तो सर को मैंने बोला कि यहाँ पर जो पास आउट बच्चे हैं मैम, जो कुछ कास्ट ऐसी है या कुछ कम्युनिटी ऐसी है जहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो वहाँ क्या होता है कि जो ग्रेजुएशन के बाद उनकी शादी कर दी जाती है, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो ग्रेजुएशन के टाइम पूरी ग्रेजुएशन चलती है, उस बीच में लड़कियों को ऐसा कुछ काम भी सिखाया जाए, अगर मान लो किसी का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो आगे जाके फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंड ना हो पाए। तो उसके लिए लड़कियों को जैसे कि स्टिचिंग हो गई, कुछ और क्राफ्टिंग जो होता है वो सिखाना बच्चों को। तो इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं सर कि जो ग्रेजुएशन के बाद कोई भी लड़की अपने घर बैठ के ऐसे नहीं कि वो इंडिपेंडेंट बन पाए, किसी पे डिपेंड ना हो, उसके लिए सर हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो पास आउट बच्चे हैं या अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ काम किया जाए। वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ काम करना है। जी ओके, थैंक यू। रूट्स पे वर्क करते हैं, तो मेरी रूट्स इतनी मजबूत यहाँ से हुई है कि आज मैं बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर में वर्क कर रही हूँ। मैंने यहाँ आके 3 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था, जैसे आप बोल रहे हैं कि पास स्टूडेंट्स को आना चाहिए और बच्चों के साथ में नई नई एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि एक प्रैक्टिकल वर्क लाइफ में मतलब कैसे बिहेव करना चाहिए। उनको अगर पहले से पता होगा, उनको डिफरेंट क्राइटेरियाज पता होंगे तो वो और अच्छे से जान पाएंगे कि हमें किस फील्ड में जाना है। मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी और आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर परफॉर्म करती हूँ, वर्क करती हूँ। तो लाइक मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये
But since you are the student of the college, what you feel the lacuna or shortcomings of the college? मुझे यही लगा, एक ही चीज़ लगी कि मैं पहले अगर पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में आ जाती तो कितना अच्छा होगा। आज मुझे 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता, बट उस टाइम में यहाँ पे वो था नहीं और मैंने मिसगाइड हो गया, कंप्यूटर साइंस में चली गई। अगर वो कोर्स यहाँ होता तो मैं पब्लिक स्पीकर काफ़ी अच्छा बन सकती थी और आज काफ़ी आगे निकल जाती। बट मैं स्टिल ट्राई कर रही हूँ। अभी मैंने नेशनल में जाके कोर्स किया है एंड यही था मेरा कि कोर्स तो होने चाहिए, एक्सप्लोर करने के लिए फील्ड होने चाहिए। यहाँ 2014 से 2017 की सेशन में रहा। मेरे को उस टाइम ऐसा लगा कि पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया था, लेकिन वहाँ ऐसे जो स्टूडेंट के साथ होता था जो सीनियर वगैरह करते हैं, वहाँ से मेरे को डर लगा तो मैं वहाँ से छोड़ के मैंने यहाँ एडमिशन लिया। यहाँ ऐसा इन्वायरमेंट मिला मेरे को कि ये डराना, किसी को डराना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। उसके अलावा जो सारी फैकल्टी थी उस टाइम और अभी भी है, सारा सिलेबस टाइम पे होता था। उसके अलावा 10 से 4 टोटल क्लास होती थी, प्रैक्टिकल वगैरह भी होते थे और सबसे अच्छी सुविधा थी कि बस चलती थी ना। मैं गांव से आता था उस टाइम, तो वहाँ में बसें वगैरह नहीं चलती थी, तो बस कॉलेज बस होके वहाँ निकलती थी। बस वगैरह चलती थी तो बस में आना जाना सारा उसके साथ था, जैसे स्कूल टाइम में चलता था ना वैसा था। और हमें ये सारा उस टाइम अच्छा लगा था। तो उसके अलावा जो यहाँ की फैकल्टी थी उन्होंने हमें आगे गाइड किया कि पीजी कहाँ से करनी है ना, अच्छे कॉलेज से, डिपार्टमेंट से करनी है, किसी कॉलेज से करनी है। तो उस टाइम मैंने बताया था कि आपको वहाँ से पीजी करनी है, तो हमने वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, क्लियर भी हुआ और हो भी गया। और उस टाइम एमएससी में भी जो पीजी चल रही थी उस टाइम वो ऐसे इंग्लिश मीडियम थी और हम उस टाइम ऐसे हिंदी मीडियम में थे। तो हमें उस टाइम थोड़ा अजीब लगा कि मैं इंग्लिश में कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उस टाइम भी यहाँ के जो सर है जो हमारा भी एचओडी है, उन्होंने मोटिवेट किया कि आप है ना वहाँ से छोड़ के और घर नहीं आना, आपको आप सारा प्रॉपर करना है, कुछ नहीं होगा, आप पढ़ाई करो अच्छे से, डरना नहीं। फिर हमने कंटिन्यू किया। उसके बाद हमें जो गाइड मिले, एमएससी में जो डेजिग्नेशन होता है उसमें जो गाइड मिले सर, उनका पूरे डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर था रिसर्च के फील्ड में। तो उन्होंने कुछ ऐसा काम दिया हमें, उस टॉपिक दिया कि आपको इस टॉपिक पे ये रिसर्च पेपर पढ़ने, इस पर काम करना। तो सर हमने 6 महीने उस पर काम किया। तो डेजिग्नेशन का जो हमने जो पेपर लिखा पूरा थीसिस बनाई थी, वो थीसिस सर एमएससी टाइम में सर ने पब्लिश करवा दी और हमें तो पता भी नहीं था उस टाइम कि हमारा एमएससी टाइम में रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद सर जैसे मेरी बीएड वगैरह भी चल रही थी उससे एमएससी होने के बाद, तो मैं यहाँ आए तो उस टाइम हमने कॉलेज वगैरह यहाँ ज्वाइन कर ली है ना, एज ए फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर बोर्ड में। तो यहाँ के बच्चों को भी बताया कि रिसर्च के बारे में कैसे पुराने जर्नल्स वगैरह होते हैं, पेपर वगैरह कैसे पढ़ना, नई थीसिस कैसे बनाना, पेपर कैसे पब्लिश करते हैं, यहाँ भी बताया बच्चों को। बस सर Yes, this is so supervisor and invigilator, then ministerial staff assessment, assessment, we pay those methods and then inside university when coming weekly, then they pick their they receive then university directly sends their copies to कई बार उसी का गाइड
Whether you have uploaded or not. Understand what I am talking about. You have uploaded in the Mac portal. Now it's yes. Without that, they don't get any blessing. वही है वैसे। कोई डिफेंस आया है डिफेंस समझता है आपका कोई कंप्लेन है क्या? कंप्लेन रजिस्टर नहीं ये बात नहीं है, हम बोल रहे हैं आपका क्या है सुविधा भी है असुविधा भी है दोनों ही होता है। अब हर जगह में आपका कोई डिफेंस है कि हमारा नहीं मिलता है वो नहीं मिलता है। आप यहाँ क्या चाहते हो कि आपको जैसे कॉपी पे वो डाले जाए पहले के अलावा और कोई इनोवेटिव जाने जाए आपको सुविधा हो काम करने सरकार सर्विस फर्स्ट ऑफ इट वाज टू मेंटेन सर्विस You talk about management now as an assistant. Do you have anything to say? नहीं ठीक है अभी इंप्लीमेंट देखो आपको थोड़ा सिखाओ लैब कैसी लैब के कंपलसरी या वो अपलोड किया होगा इसलिए प्रूफ इसका क्या है उसका एक फाइल है वो सिखाओ ये नाम से colleges maintaining that of alumni. Why? Abhishek ji. What is it? Hey, who is this? This is an alumni. He is an alumni. अभी आया था वो हाँ No, you did not know that you instead of saying most of the students, you have आप देखा पोस्ट ऑफिस
उसके बाद हाईटेक को आना है, उसके रिकमेंडेशन के लिए एनईपी यूनिवर्सिटी ने लागू किया है, काफ़ी फॉलो अप हो रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सभी क्लासेस में चालू पूरा हाँ एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी हो गया, 4 साल का भी एक बैच होता है और अकॉर्डिंग टू 50 का ये 150 का सी है अलॉन्ग विद पीटीटी के माध्यम से। तो लास्ट ईयर में सब ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पैरामेडिक सब्जेक्ट उसी में तो उसी में इंटर्नशिप करते हैं। फर्स्ट ईयर में जाएगा 1 मंथ के लिए 24 डेज और उसमें 96 डेज का है सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में एग्जाम जैसे 96 कंप्लीट होंगे गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से यूनिवर्सिटी होती है एकेडमिक हम 96 पर जो पेपर करने के बाद उसका एग्जामिनेशन होता है फॉर्म उसी समय भराया उसमें ड्यूरिंग का इसके बाद एग्जाम देने आए हमारे स्टडी होगी You are what is in the internal complaint committee, what chairperson is the main. No, I'm saying that it's fine. You are a chairperson, you are a manager. You deserve to do. You are working on property, but the chairperson is the main. Parliamentary Act 2013, what does it say? Internal complaint committee should be added to the main or a female. Chairman, female or not? Parliamentary Act. Internal complaint committee is come from December when Parliament enacted it. They are chairperson of the internal complaint committee. Who is to be? I don't know what it is. फालतू कंप्लेंट बढ़ा नहीं सकते, आपका भी बढ़ेगा, वो ठीक है, बात सही काम, गलत काम, सच बात, सच फंक्शनिंग हो रहा है तो आगे सुनिए जो चेयरमैन मेंबर और सुनिए आप देखिए तो नेक्स्ट मीटिंग का पहले हमको बोलिए नहीं है, मैं भी बोला तो अभी बात नहीं हो रहा है, हम जहाँ तक ध्यान रिपोर्ट किया जिस तक फर्स्ट स्टिल आई मे बी टू चेक अप एंड इफ दिस गिव इट टू द हमारा इंटेंशन ये नहीं है गलत पकड़ना पार्लियामेंट्री एक्शन कोई गलत से हो गया अरे मेरा पर्पस ही नहीं है हम ये गलत ये गलत नहीं ये तो बहुत सीरियस कोई केस हो जाए अच्छा आपका जो harassments ठीक है मैडम आप वेंटिलेटिंग कौन है सेंटर में ऊपर बराबर दिखा रहा है ऊपर हाथ गला हाथ
अच्छा कोशिश करें। हम बच्चों को भी लिया, जैसे बी एड के बच्चों वगैरह को लिया, और उसमें हमने सोचा उनको रिसर्च के बारे में बता दिया, उनको रिसर्च के ये कैसे कर सकते हैं, कैसे उनके ऊपर उनकी चीज़ उनके आगे के लिए हो गया हमको। बच्चे के तो रिसर्च के बारे में कुछ मुझे कुछ इनोवेशन का बारे में क्या इनोवेट करना है, स्टूडेंट को लेके इनोवेट कर सकते हैं, स्टूडेंट को रिसर्च हाँ स्टूडेंट को लेके स्टूडेंट को आपका इंक्यूबेशन सेंटर इनोवेशन सेल है, और इंक्यूबेशन इज समथिंग डिफरेंट। वी आर इंक्यूबेशन सेंटर, सो ठीक है, इनोवेशन सेल इज दैट इंफ्लुएंस राइट, एंड देन यू स्टार्टेड ऑल्सो ऑन और कुछ तो नहीं है एससी बोलेगी सब बात करेंगे बात मीटिंग के कमेटी का संपर्क पता वो भी प्रेसिडेंट आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप क्या वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप क्या करते हैं? नहीं ये बात प्रबंधन क्या है? तो कभी मैट्रिक मार्क्स का टेस्ट नहीं करता, तो क्लास सेशन का टेस्ट नहीं करता, तो वहाँ से क्या वो फॉर्म आ गया रैगिंग जैसा करते कोई दूसरा रैगिंग करता है और उसको इंसल्ट करता है, ऐसा कुछ कंप्लेन आया क्या? ऐसा तो नहीं, एक्चुअली हम उसके लिए ऑलरेडी जब एडमिशन लेता था उसके बाद मैं राजस्थान में उनको भी सपोर्ट हाँ यस कौन सी का any complaints against any complaints regarding the awarding of marks एग्जाम कमेटी में होगा, अनफेयर मीन्स कमेटी है क्या? जो कॉपी करते हैं उसका कमेटी रहते हैं। एग्जाम कमेटी इम्पोर्टेंट है एग्जाम कमेटी, बिकॉज इंटरनल भी है आपका 20 मार्क्स इंटरनल है, तो एग्जाम कमेटी हाँ that is okay. Controller of chief conductor is controller of exam board. controller of exam actually university appointed है। नहीं आपका कौन है? यहाँ सुपरिटेंडेंट होता है। कौन है? प्रिंसिपल। एग्जाम कमेटी होना चाहिए ना? कॉलेज होना चाहिए। एंट्री देना चाहिए, यूनिवर्सिटी को करना चाहिए, उसका कोई हिस्सा होगी। आप लाइब्रेरी का काम कब करते हैं या ये काम को? हमारा इसको तो बहुत प्रॉब्लम है। सर नहीं मैं लाइब्रेरी हम ये काम करते हैं, ये इंटरनल एग्जामिनेशन तो एक्सटर्नल ये भी देखते हैं, वो आप IQC का ऊपर कर लिया, ये भी क्या चल रहा है भाई? IQC देखेगा मतलब ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, आप सकेगा तो सबको इवोल्यूशन नहीं होता है। इंटरनल एग्जामिनेशन सब कंडक्ट किया। इंटरनल एग्जामिनेशन में बहुत 700 स्टूडेंट, इंटरनल एग्जामिनेशन 700 स्टूडेंट, नॉट 100 स्टूडेंट। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आप एक और the concerned heads of the departments has to take care with the support of the respective teachers. There is the matter, and whatever the marks that are posted, it should be submitted to the principal, and the principal will give the computer simple mechanism.
concrete things. How it will be very clear. So there is only education. So there will be 70 plus 30 ratio. 70% marks for the external examination, 30 for the assessment. Is there any distribution within this? Both to be 10 plus 10 plus 10 or 15 plus 15. To university not It is the head of the department. hand of the department. Sir. So there is no assignments. Yes, how you are doing it here, that's what we Yes, need. then sir, we conduct examination, internal examination at 10 plus 10 2 days, then 10 marks Assignment. 10 marks for the assignment and viva. Assignments, then seminars, giving seminar in the Yes. classroom, Seminar, then for attendance, some projects, yes, distribution of marks. So in your college, only assignments, internal tests. Internal test and assignment. And some subjects have PP presentation also. It depends on the Depend department. on the department. And they communicate with the students. Yes, yes. Sir, I teach computer science, so I will give student to the assignments also. And There also, I have the difference of opinion. All these courses are offered in one college. There should be a uniform pattern of award in internal marks. For example, 15 marks for internal test and another 5 marks for seminars, presenting seminars, another 5 marks for assignments, then another 5 marks for some other activity. So that all departments invariably follow this system. It is basic for the university also. And the marks are going for university. The university means University for the marks are 30 on 30 or 30 you want. They avoid this problem. Give it to the college. Actually, no, actually, BOS itself is 80% 5 marks. 80%, 90%, 7 marks. 90 to 95%. That is what I insisted. 9 marks. Above 95%, 10 marks. So we follow curriculum of the university. Yes, sir. So this is the curriculum of physics only. But wherein other subject, this is the patterns totally different. So we take Whatever university says, but then there is practical also. Practical to know. convenient meeting and give instructions to all the heads of the departments. These are the uniform patterns we have to follow. It is the uniform pattern.